Good morning, everyone. This is chapter 14, Symmetry. And firstly, we will discuss about basics of symmetry. So, basically, symmetry is a symmetrical concept that is found in most cases, including nature. मतलब symmetry जो है वो आपको अपने आसपास की चीज़ों के अलावा नेचर में भी देखने को मिलती है. जैसे सन क्या होता है? सन का शेप सर्कुलर होता है और सर्किल में आप जानते हैं कि इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. सो coming back to the point, so what is line of symmetry? First of all, what is line of symmetry? So if we are having a shape like this and we cut it in two half with the line, with the vertical line, so this line will be called the line of symmetry, और क्योंकि ये वर्टिकल है देन इट विल कॉल्ड द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे ही अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं सो दिस विल कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, and these two are the lines of symmetry for normal shapes like square, rectangle and circle. ठीक है. Now moving on to the next part, and one more thing, the line of symmetry is a imaginary line. Imaginary means जिसको हम अपने मन से मानते हैं, ये हम अपने आप से बनाते हैं किसी भी फिगर को देख के. जैसे सपोज वी आर हैविंग ए सर्किल, तो एक सर्किल में दिस विल बी a vertical line and this will be a horizontal line of symmetry, and in a circle we can also draw this type of a line. It is also a line of symmetry for the circle. This is also a line of symmetry. This will also be a line of symmetry. So in this case, in the case of circle, we have infinite number of lines of symmetry. Now moving on to the next part, reflection symmetry. When we cut a shape into two halves and they are showing the same reflection on the either sides of the line, then these reflections or then this type of symmetry is called the reflection symmetry. Means suppose we are cutting this circle vertically and this is showing the one semicircle on the right side and another semicircle on the left side, and these are same in the shape, then this will call the reflection symmetry. These are also called the mirror image. Suppose we are taking another example, like we are having a square and if I cut it in with the help of horizontal line of symmetry, then it is showing two equal halves of the square. The square is divided into two equal half of rectangles. One is this and another one is this. So in this case they are all again showing the mirror image of the two rectangles, which after combining making a square. So this is called the line of symmetry, and this is specifically called the reflection symmetry. Now come to the point symmetry. Coming to the point symmetry is if we are having a circle and there are given 2 points on the circle, one is this and another one is this, and you have to draw a line of symmetry. But so when we draw the line of symmetry for the point symmetry, we will draw it like this, क्योंकि ये दोनों points जो हैं ये तभी symmetrical कराएंगे जब हमने जो line of symmetry draw की है, हम इन दोनों को जब कवर करेंगे या जब दोनों को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए, तभी वो कहलाएगा हमारा पॉइंट सिमेट्री. मीन्स अगर आपको किसी शेप में कोई पॉइंट गिवन है तो वो पॉइंट सिमेट्रिक लाइन खींचने के बाद एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए. सपोज आई एम हैविंग ए rectangle and these are the 2 points on which you have to draw a line of symmetry. तो आप जो line of symmetry draw करेंगे you will draw it like this, then they will be called the point symmetry. Or you have to, in another shape, I am giving you another shape. In this shape if you have to draw a, suppose we have a square and I am giving you
this point and this point, then you cannot draw a horizontal line. You can only draw a vertical line of symmetry so that they can show the point symmetry. If you draw a horizontal line, the points will be cutted out. So in this case, in a square, if the points are given, then you will cut it in two parts when the points having same distance from that line of symmetry. Next is line of symmetry for regular polygons. In the regular polygons, we know that all the sides of the regular polygons are same, like equilateral triangle, square, regular pentagon which is having all the 5 sides equal, and regular hexagon, heptagon, octagon. इनमें सारी sides क्या होती हैं, equals होती हैं, इसलिए इनको regular polygon बोलते हैं. Every regular polygon is having lines of symmetry according to their sides. Means in an equilateral triangle we have 3 lines of symmetry like this. You can see in the diagram we are having lines of symmetry 1, 2 and 3. In square we are having 4 lines of symmetry, horizontal, vertical and 2 diagonal symmetries. In the pentagon we are having 1, 2, 3, 4 and 5 lines of symmetry. That means in every polygon we are having the lines of symmetry as the number of lines in that polygon. अगर वो ट्राइंगल है तो उसमें 3 लाइंस होंगी, दैट मीन्स इसमें 3 नंबर ऑफ, इसकी जो नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस है वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी. बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन रेगुलर पॉलीगन्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सिर्फ उन्हीं पॉलीगन के लिए ये एप्लीकेबल है. Next is rotational symmetry. So what is rotational symmetry? Rotational symmetry is when we rotate any figure around a center point and it still appear exactly like it did before, then this is called the rotational symmetry. Suppose we are having a square A, B, C, D, and this will be the center point of the square. So when we rotate it around its center, suppose I am rotating it around its center up to 90 degrees, then this will be A, B, C, D and this. So again देखिए 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद भी we are getting the same figure. This is a square and this is also a square. So this is called the rotational symmetry, but it depends on the shape of the figure. If we are having a rectangle, then it will not show the rotational symmetry at 90 degree, but a rectangle is showing the rotational symmetry at 180 degrees. If we rotate it 180 degree, then we are having A, B, C and D. So this is called the rotational symmetry, when a shape after rotating at a particular angle showing the symmetry, showing the same figure after rotation. जैसे ये ABCD है, अगर हम इसका नाम हटा दें, ये ABCD नाम हटा दें और अगर हम ऊपर वाले फिगर और नीचे वाले फिगर को देखें तो ये सेम फिगर है. बट अगर हम इसी फिगर को 90 डिग्री पर रोटेट करते तो हमें ये फिगर कुछ ऐसा दिखता. जस्ट अ मिनट. अगर हम किसी रेक्टेंगल को 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो हमें ऐसा फिगर मिलेगा, जो कि रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा है. क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, जब हम किसी फिगर को 90 डिग्री या किसी भी एंगल पर रोटेट करते हैं और हमें सेम फिगर मिले. अभी हमें सेम फिगर नहीं मिल रहा है, बट अगर हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमें सेम फिगर मिलता है. जैसा ये रेक्टेंगल है वैसा ही ये रेक्टेंगल ये भी है, बट इनका फिगर सेम नहीं है. ठीक है. और ये एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, बट हमने जब जैसे ही इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, इट इज़ शोइंग द वर्टिकल रेक्टेंगल. दैट मीन्स कि जो रेक्टेंगल है वो हमारा 180 डिग्री या 360 डिग्री पर ही रोटेशनल सिमेट्री शो करता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम
किसी स्क्वायर को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं या 180 पे या 270 पे या 360 पे, तो वो हमें सारे एंगल्स पर 90, 180, 270 एंड 360 सारे एंगल्स पर रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि हर बार हमें एक स्क्वायर ही मिलेगा। बट एक रेक्टेंगल सिर्फ 180 और 360 पर ही रोटेशनल सिमेट्री शो करता है। नाउ मूविंग on to the next part, it is सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आपको पता है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को कट करते हैं वो कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है कि हम किसी चीज़ को कितनी बार रोटेट, जैसे ये जो हमारा ABCD, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसको जब हम 180 पे एक बार रोटेट करते हैं, 180 डिग्री पर एक बार रोटेट करते हैं, तो हमें मिलता है ABC एंड D। और जैसे ही हम इसको 180 डिग्री पर दोबारा रोटेट करते हैं, हमें सेम फिगर मिलती है ABC एंड D, मतलब सेम फिगर जो हमने पहली फिगर, मतलब फर्स्ट और थर्ड फिगर सेम है। तो हमने इसको टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए? अगर हमें पहली फिगर जो है और दूसरी फिगर में नाम देखिए AB, जो ABCD है वो देखिए AB नीचे हो गया, और ठीक है, और तीसरी फिगर में AB दोबारा वहीं पर आ गया है जैसा कि पहले फिगर में था। दैट मीन्स अगर हमें बिल्कुल सेम फिगर चाहिए विद द नेम, दैट मीन्स वी हैव टू मूव इट 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होती है और ट्राइंगल की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 होती है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम 3 टाइम्स 120 डिग्री पर मूव करते हैं तो हमें लास्ट में जो हमें रोटेशन के बाद जो लास्ट फिगर मिलती है दैट इज़ सेम लाइक फर्स्ट फिगर। देखिए, जैसे इसमें देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आप पॉइंट देख सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा रखा है ब्लैक कलर का। हमने इसको एक बार 120 रोटेट किया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर दोबारा हमने इसको 120 रोटेट किया, ये पॉइंट यहाँ, और जब तीसरी बार रोटेट किया तो देखिए पॉइंट अपनी ही जगह पर आ गया जैसे पहले में था। दैट मीन्स हमने इसको 3 बार रोटेट किया है टोटल, और 3 बार रोटेट करने का मतलब है 120 × 3, दैट मीन्स 360 डिग्रीज। दैट मीन्स 360 डिग्री कितना होता है? एक सर्किल की तरह, कि अगर आपने इस पॉइंट से शुरू किया है तो आप दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, ये कहलाता है 360 डिग्री। तो वही हुआ है, हमने जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ पर था और वहीं पर हमें लास्ट फिगर में भी मिला है, तो ये कहलाता है हमारा रोटेशनल सिमेट्री इन ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिगर विथ बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे बहुत कम फिगर्स होते हैं जिनमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो पहला फिगर है हमारा रेक्टेंगल, जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको पता है 2 होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और रोटेशनल मैंने बताई थी कि एक बार जब आप इसको एक बार 180 पे रोटेट करते हैं तो आपको ऑपोजिट फिगर मिलता है, और जब दोबारा आप इसको रोटेट कर देते हैं तो आपको सेम फिगर मिलता है। दैट इज इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री टोटल होती हैं 3, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है रोटेशनल सिमेट्री का, वो भी मैंने बताया था अभी, जिसमें ऑरेंज कलर के आपके डायग्राम थे, वो भी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके स्क्वायर में टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? 4 होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और जो आपका रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर होती है वो भी 4 होती है। कैसे? जब आप इसको 90, 90, 90, 90 4 बार रोटेट करते हैं तो लास्ट में देखिए 90 × 4, अगर आपने इसको 4 बार रोटेट किया तो कितना आ गया? 360 आ गया। मतलब अगर आप इस पर कोई पॉइंट मार्क करके चलते हैं तो जहाँ पर भी मार्क करेंगे वो पॉइंट दोबारा आपको वहीं पर मिलेगा आफ्टर लास्ट रोटेशन। दैट मीन्स कि इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है कि जिस शेप से हम शुरू कर रहे हैं, जो पॉइंट जहाँ पर है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, लास्ट जब हम उसका रोटेशन लेते हैं तो वो पॉइंट हमें वहीं पर मिलता है, तो वो आपकी कहलाती है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में आपने उस शेप को जितनी बार रोटेट किया है तो वो रोटेशन कहलाते हैं उसके
order of symmetry. Thank you.